Hello, my dear soul family. Let's see ki is coming towards you in this February month, and this reading is all about who is coming towards you and why this people is coming towards you. Let's see and check out through your energy. So, to connect with your energy, let's take a deep breath in, connect with your breath, and let's see. Oh, who is coming towards my collective? Why is coming towards my collective? Nice. Nice. Very beautiful card. Even I could say this is amazing card. So my dear soul family, if you're waiting for so long and it is like months after months or days after days, you're like feeling sad, feeling grumpy, feeling hopeless, all these kinds of feelings if you're having, be ready. The healing is coming towards you. अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं था तो आपका हेल्थ ठीक होने वाला है. अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिप्रेस थे, आपकी एनर्जी सही नहीं लग रही थी, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो बी रेडी, आपको बहुत अच्छा फील होगा. दैट हैप्पीनेस इज all around the corner and it is coming towards you. Third thing what I could see is if you feel stuck in between something, अगर आपको stuck लग रहा था कुछ चीज़ों की वजह से, आप मूव नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीज़ों से आप को लग रहा था कि आप कितना भी कुछ कर लो आपकी चीज़ चेंज ही नहीं हो रही, आपकी एनर्जी ही चेंज नहीं हो रही है. दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी वेयर आई कैन से एंड सी that your energy is shifting towards that part of you where you can feel that freedom, you can have that money, you can have that abundance, that prosperity that you're waiting for, that healing of the health, that healing of your mind, that healing of your heart that you are waiting for. Everything is coming towards you, and it is a very beautiful time indeed. It is a very amazing month. This February month is going to be very beautiful, so be ready with this beautiful energy and so much of work that is coming towards you at this very time. This is the first thing that I have seen in this February month. Second part of your journey where who is coming towards you. So the healing is coming towards you. The abundance is coming towards you. The things that you're waiting for, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था, कुछ चीज़ों के लिए आप प्रे किए जा रहे थे एंड वो चीज़ें आपकी कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, आपके वो प्रेयर आंसर्ड कब होंगे आपको ऐसा लग रहा था. दैट इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स यू. So many things you have asked in the prayer, so many things you are waiting for, so many things you're wishing for. Be ready. All these things are coming towards in this February month. So be ready with your energy to receive all those things. See, when you ask for something, it doesn't matter कितनी भी बड़ी चीज़ मांग रहे हो, छोटी चीज़ मांग रहे हो, अगर आप रेडी नहीं हो रिसीव करने के लिए तो ये चीज़ें आएंगी, आपको टच करेंगी, चली जाएंगी. सो बी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जी, बी रेडी विद दिस एनर्जी कि ये चीज़ मेरी है, आई डिजर्व इट, इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू बी लव, टू बी फील सेफ, टू बी इन दैट abundance of wealth, abundance of health, abundance of beautiful love. आप वो सारी चीज़ें पा सकते हो. इफ़ इट इज़ अ प्रमोशन, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. इफ इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, नहीं हो रहा था, वो भी आ रहा है बिकॉज सन का कार्ड है. एंड इफ इट इज़ कि आप बाहर नहीं जाते हो, सनलाइट में नहीं जाते हो, आप सो जाते हो सुबह, तो द कार्ड इज ऑल्सो गाइडिंग मी टुवर्ड्स दैट पार्ट ऑफ यू कि आप सुबह सुबह उठ के सन की लाइट को लेना चालू करो. योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज for beautiful reasons behind it. So be mindful and be ready with this beautiful energies. बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं. द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट इज गेटिंग माई eye is like this 9 of cups. This is the wish fulfillment, my dear soul family. Go out. क्या है ये? Whatever you have asked for, whatever the prayer that you asked, in the prayer that you asked, everything, it is coming towards you. The 9 of cups, this card, specifically this card, is not only about the emotional fulfillment that is talking about the things that you asked in the prayer कि मेरी relationship ठीक नहीं चल रही है, मेरी relationship ठीक कर दो. सिंगल हो तो आप अगर किसी को मांग रहे थे, अगर आप relationship में हो और वहाँ पे अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, उसको अगर आप मांग रहे थे, अगर आपकी relationship friends के साथ ठीक नहीं चल रहा
था, आपके कलीग्स के साथ ठीक नहीं चल रहा था, इन एनी केसेस आप खुद के साथ भी अगर ठीक नहीं था तो भी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज यू आर इन द सेल्फ लव एरा। आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, आप किसी का वैलिडेशन का वेट नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी माइंडफुल, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी की खुद के अंदर आप अपना काम किए जा रहे हो, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में इतने बिजी हो कि एवरीथिंग इज लाइक बाय प्रोडक्ट। द मनी स्पेसिफिकली, इफ यू हैव आस्क्ड फॉर दैट मनी एंड यू वर्किंग ऑन योर ओन एनर्जी, दिस मनी इज अ बाय प्रोडक्ट डार्लिंग, एंड दिस मनी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन आ रहा है आपके पास? ये पैसा आ रहा है, जो पैसा आपने मांगा है ये पैसा आ रहा है। जो भी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आपने मांगा था इन योर प्रेयर, इन योर बिलीफ सिस्टम कि ये चीजें मुझे नहीं मिल रही, ये चीजें कैसे मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगे, दिस इज व्हाट इट इज। ये सारी चीजें आपके पास आ रही है एंड बी रेडी विथ इट। दूसरी चीज, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, कोई झगड़े में फंसे हुए थे, कोई ऐसे थे जो आपके साथ बहुत झगड़ा कर रहे थे बहुत टाइम से, दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट एबल टू सॉल्व, देन इन दिस केस अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप थे इस रिलेशनशिप में और आपको हमेशा लग रहा था कि दिस रिलेशनशिप कुड बी लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप, इज देयर सम मैनिपुलेशन शुड बी देयर, कुछ ना कुछ है इस रिलेशनशिप में या इस जगह पे जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जो भी आपके सामने आ रहा है। सो बी रेडी विथ इट कि ये जब भी आए उसके ड्रामा ट्रॉमा में आपको नहीं फंसना है। डोंट प्ले विद देयर ओन एनर्जी, लेट देम रेडी विद देयर एनर्जी की अगर वो आपके सामने आ रहे हैं, लेट देम हैव दैट करेज, दैट फेथ एंड दैट स्ट्रेंथ, दैट कॉन्फिडेंस की मैं इस आदमी के साथ अगर बात कर रहा हूँ या आ रहा हूँ तो आने दीजिए, उनको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने उनको उनके ही गेम से फिर से खेलना चालू किया, उनके ही गेम में उनको रहने दिया, तो इट इज लाइक कि इट इज अगेन गोइंग टू ड्रेन योर एनर्जी। सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एट द सेम टाइम लेट देम स्पीक व्हाट दे वांटेड टू स्पीक विथ यू, बट बी रेडी विथ इट कि आपको उनके ड्रामा में नहीं जाना है, उनके कोई भी ऐसे कन्वर्सेशन में नहीं जाना है जहां पे आपको थोड़ा भी अगर ये गट फीलिंग आ रहा है कि दिस सेंटेंस इज नॉट मेंट फॉर मी, दिस सेंटेंस इज नॉट गुड फॉर मी, और दिस सेंटेंस इज हार्मिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और because you have to take care of your own self respect, okay? Because see, the love is so deep and the loyalty is so deep from your side, because I'm doing this reading for you, my dear soul family. It is not about them. I'm doing this reading for you. If your energy is so beautiful, so damn good and so appreciative, so angelic, so beautiful, तो आप अगर इस एनर्जी में हो जहाँ पे फाइटिंग वाले मोड पे हो तो फाइटिंग वाले मोड से उतर जाओ। यहाँ से कोई फाइट नहीं करना, आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना। लेट देम हैव देयर टाइम, हैव योर टाइम, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी। थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा अपने साथ टाइम गुजारो और वहाँ पे देखो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अराउंड यू, कौन कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स है जो आप नहीं देख पा रहे हो, और फिर उनकी चीज़ों को सुन के आप डिसाइड करो कि इफ दिस थिंग्स आर हेल्पिंग मी आउट, दिस थिंग्स इज टेकिंग मी इन अ अपलिफ्टिंग वे, इफ दिस थिंग्स आर ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन मी एंड ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन दैट पर्सन, देन इट इज लाइक अ कोहेरेंट हार्मोनियस एनर्जी, राइट? अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस एनर्जी का क्या करना है? बिकॉज इन एनी केसेस दिस एनर्जी, दिस ब्यूटिफुल एनर्जी इज टेलिंग मी जो भी झगड़े थे वो झगड़े खत्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप यहाँ पे इनके साथ अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट पे थे तो भी आपको अब उस जगह पे उनसे ये चेक करके देखना है, बिकॉज 5 नंबर इज ऑल्सो चेंज, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द ह्यूज चेंजेस दैट इज ऑकरिंग इन योर लाइफ। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो भी आप रेडी रहिए कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से उनके साथ शेयर करना चाहते हो। एंड योर एनर्जी इज वेरी एक्सपेंसिव, सो बी रेडी विथ इट कि अगर मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना जो भी प्यार उनको देना चाहता हूँ या चाहती हूँ उस जगह पे मुझे इतना समझ में तो आना चाहिए दैट आई एम इन्वेस्टिंग इन अ राइट प्लेस। नो अदरवाइज इट इज लाइक कि आप प्यार करना बंद नहीं कर सकते इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट देयर विथ यू, बट एट द सेम टाइम यू कांट टेक ऑल द BS, ऑल दीज मैनिपुलेटिव गेम अगर वो खेलना चाहते हैं, इफ दे कम टूवर्ड्स यू इन अ राइट मैनर, वो दिख जाएगा। जिसको भी आपके पास आना है ना वो दिख जाएगा, बिकॉज सी द वेरी नेक्स्ट कार्ड इज द 2 of Cups का कार्ड है। द लव दैट यू आर वेटिंग फॉर, द प्रपोजल दैट यू आर वेटिंग फॉर, the challenges that you are going through to have this love, अभी तक जितने भी challenges आप through कर रहे थे, that love is absolutely there, the love is there, so be ready with it। कोई doubt नहीं है इसमें कि this season, this specifically this whole week and this whole February month is all about the love and this beautiful 2 of Cups का card भी मुझे यही बता रहा है कि the kind of love that you are always eager to search around वो भी आपके पास आ रहा है। अगर वो आपसे दूर था तो भी आपको अब समझ में आ जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा that this person belongs to me and this person is meant for me। तो हो सकता है कि this person is always going to
टेल यू हाउ एग्जैक्टली ही और सी फील्स, बट अभी तक हो सकता है कि उनके इनसिक्योरिटीज की वजह से उन्होंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, आपको कुछ बता ही नहीं पाए थे, बट अब probabilities are there that you are going to receive that beautiful reconciliation, that beautiful confession वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो खुद से आके आपको वो सारी चीजें बता के दे। और दिस इज इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ अप्रोच एंड प्रपोजल, कि आपको वो प्रपोजल मिल रहा है। तो यस, फरवरी मंथ में क्या आ रहा है आपके पास, वो ऑफर आ रहा है, वो प्यार आ रहा है, और वो झगड़े जो बहुत टाइम से चल रहे थे वो सारी चीज़ों से दूर हटने का टाइम आ रहा है। एंड अब हो सकता है कि प्रोबेबिलिटीज आर देयर इन दिस फरवरी मंथ, यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन एंड सो मेनी थिंग्स इज गोइंग टू गो इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, कि आप अपने ही ऊर्जा को इस तरीके से लगाओगे, दैट इज अ वेरी न्यू ब्यूटिफुल बिगिनिंग। और पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जहाँ पे आप कुछ ऐसी नई चीजें क्रिएट करो जो इट विल क्रिएट अ बूम, इट विल क्रिएट अ लाइक मैग्निफिसेंट ऑरा बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ आपने छोटा मोटा क्रिएट किया, बहुत टाइम से सोच रहे थे, अचानक से आपने क्रिएट किया और वो बहुत बढ़ गया, ऐसी वाली एनर्जी है। तो अगर आप ऐसा कोई क्रिएटिव आइडियाज है आपके पास, आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टू स्टार्ट क्रिएटिंग दोज थिंग्स। हाँ, बट दिस इज नॉट एट ऑल अ पर्सनल रीडिंग, दिस इज टोटली अ कलेक्टिव रीडिंग। तो अगर आपको लगता है कि आई कैन क्रिएट समथिंग, आई हैव समथिंग इन माई माइंड, देन यू कैन ऑल्सो बुक अ 101 सेशन विथ मी एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर एनर्जी एंड टेक ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स, जो ब्लॉकेजेस है, उसको देखने के बाद आप डिसाइड कर सको कि हाँ ये चीज मेरे लिए सही है, बट इट इज देयर। ओके, यू कैन स्टार्ट दोज थिंग्स इफ यू वांटेड टू, इफ यू आर परस्यूइंग सम पैशन वाली जर्नी है, आपको कुछ पैशन के क्रिएटिविटी में वाले एरिया में आप हो, तो वो चीजें आपके लिए बहुत 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 अच्छा होने वाला है। एंड इफ सम पीपल आर लाइक फीलिंग लोनलीनेस, अकेले हो, आपको बहुत टाइम हो गया अकेले रहते हुए, सिंगल हो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, तो दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल टाइम वेयर यूनिवर्स इज गोइंग टू शो यू सम लव एंड यू आर गोइंग टू रिसीव सम काइंड ऑफ ब्यूटिफुल लव फ्रॉम सम पीपल। एंड universe is making your whole aura, your whole personality, yourself ready, जहाँ पे आप हो सकता है कि अभी अभी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गए हो टू रिसीव दिस का। क्योंकि जब तक कुछ चीजें खाली नहीं होती है, कभी कभी हम कुछ चीजों को लेट गो नहीं करते हैं, तो वो सही वाला प्यार नहीं मिलता है, वो सही वाला जॉब नहीं मिलता है, वो सही वाला प्रमोशन नहीं मिलता है, वो सही वाला प्रोफाइल नहीं मिलता है। तो ऑलवेज रेडी विथ ऑल दोज थिंग्स, जब आप प्रेयर करते हो, मांगते हो कि ये चीज चाहिए, तो वो चीजों के साथ ना कभी कभी क्योस भी आता है, और हमें क्या लगता है कि ये क्योस क्यों आ रहा है, मैंने तो चीज कुछ और मांगा था और भगवान मुझे कुछ और दे रहे हैं। तो दिस माइट बी अ रीजन कि आप अपनी ही ऊर्जा में फंस के रह जा रहे हो। कभी कभी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ये बहुत बार होता है कि आप कभी कभी ऐसे एरिया में फंस जाते हो जहां पे आपको समझ में आ रहा होता है कि दिस पाथ इज फॉर मी एंड दिस पाथ इज वेरी राइट फॉर मी, बट कुछ लोगों को आप ऐसे सुनते हो जहां पे उन लोगों की एनर्जीज आपके लिए सही नहीं होती है, और उन लोगों की ब्लॉक्ड एनर्जी की वजह से आप जो भी दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि क्रिएटिवली आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपका इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, बट दीज पीपल आर नॉट राइट। ओके, दीज पीपल, हुएवर इज टॉकिंग टू यू, हुएवर हैज दिस कम्युनिकेशन इज देयर, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आप जब बढ़ते होगे उस टाइम पे वो आपके साथ कुछ ऐसे बात करते होंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि यू आर गोइंग इनटू दैट डाउट वाला एनर्जी की इज दिस थिंग कैन पॉसिबल। हो सकता है आप किसी को किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आप एक कलीग के साथ सारी चीजें शेयर करते हो, और वो कलीग आपकी चीजें सुन रहा है, ही और शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ यू, बट इन सम डीप हार्ट हो सकता है कि दिस पर्सन इज jealous towards that thing. Okay, हो सकता है, it is like human journey में है हम, तो कुछ भी possible है। this person is like somewhere felt कि कुछ तो है ऐसा जहां पे अगर मैंने इसको कुछ ऐसा बोला तो इसकी एनर्जी अगर रुक जाए तो सो बी रेडी विथ इट कि कुछ ऐसे लोग हैं, तो अगर आपको उनकी एनर्जी समझ में आ जाए तो आप अपने आप को उस जगह से स्टेप आउट करके आप अपने एनर्जी को बचा सकते हो। जैसे आप अपनी एनर्जी को बचाओगे वो कम्युनिकेशन आपके पास आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटीज आर देयर कि कौन आ रहा है आपके पास। तो ये वो पर्सन भी हो सकता है जो पिछले पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा भी हो सकता है कि उसको बहुत सारे लोग बिका कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसके कान भर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजें सिखा रहे होंगे कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज दिस, यू कैन डू दिस, ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वो कर दिया तो ऐसे दिखेगा। एंड दीज आर द काइंड्स वो कि जहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सोच से नहीं चलते, एंड वो लोग ऐसे सोच से भी चलते हैं कि अगर किसी ने कुछ बोला, दे नीड दैट वैलिडेशन। ओके,
जहाँ पे उनको वैलिडेशन चाहिए कि आप अगर वैलिडेट करोगे देन आई एम ओके विद इट कि आई कैन गो फॉरवर्ड विद इट। अगर किसी ने भी इनवैलिडेट कर दिया कि उस लड़की से मुझे शादी करना है कि नहीं, या वो जॉब करना है कि नहीं, वो गाड़ी लेना है कि नहीं, अच्छा ये प्रमोशन लेना है कि नहीं, इफ दिस इज द थिंग इज विथ यू और दैट योर पर्सन, यू चेंज योर एनर्जी, वट एवर इट इज लाइक रेजोनेट विथ यू, टेक दैट एंड लीव ऑल द रेस्ट। आप उस जगह पे चेक करो कि अगर उसको कहीं ना कहीं अगर कोई सिखाने वाला ऐसे आदमी है, हो सकता है कि कोई दूसरे लोग भी हैं, एंड दीज पीपल आर देयर who were like all these times उसके कान भर रहे हैं, उसके दिमाग में ये सारी चीजें डाल रहे हैं, और this person could not able to make it out कि what exactly is going on with me. But in deeper level, when that person is like alone and having some time of his or her own, उस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है कि something is wrong in this light or in this aura. अभी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, but I really love that person and I really have good time with this person. I should go back to that person. बट कुछ लोगों को ईगो इतना रहता है कि दे कांट कम बैक टू यू, दे कांट इवन से सॉरी. सो इट इज दिस जर्नी जहां पे कि unless this person is ready to say that sorry, ready to apologize, ready to take control and ready to accept that पेन कि हाँ मेरे से गलती हुई है, लेट मी टेक दैट फॉरवर्ड विथ मी कि मैं ये चीज मैंने खराब किया है, मैं ठीक कर सकता हूँ, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एंड दैट थिंग कैन क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग. एंड इट इज ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, इट इज ऑल अबाउट द डिवाइन ब्लेसिंग्स. इफ यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, इफ यू लव दैट पर्सन मोर देन इनफ, इफ यू डू नो दिस पर्सन इज लाइक फॉर यू, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कुछ ही टाइम बीइंग के लिए है. कितनी देर सिखाएंगे, कितनी, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाने वाला है ना. तो जब भी ये सच आएगा उस टाइम पे अगर ये एनर्जी सही रही तो यू आर गोइंग टू रिसीव दिस लव. एंड दिस फेब्रुअरी मंथ इज ऑल अबाउट यू टेकिंग केयर ऑफ यू एंड यू आर लविंग यू. सो आप अपनी एनर्जी को जितना ज़्यादा प्यार से संभाल के, प्यार से उसको सेल्फ लव में रखोगे, अपनी आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे टू होल्ड ऑन दैट लव कि वट एवर दैट इज गोइंग ऑन विथ मी, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेसन, इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट इज गिविंग मी कि मैंने ही अपनी दुनिया को बिगाड़ा है तो मेरे पास भी ताकत है अपनी दुनिया को फिर से बनाने के लिए. लेट मी हैव दैट कंट्रोल विथ मी, लेट मी हैव दिस ब्यूटिफुल एनर्जी. क्यों मैं इस एनर्जी में अपना टाइम वेस्ट करूँ? अगर ये आपका पर्सन है जो आपके पास आ रहा है, अगर इस एनर्जी से वो आएगा तो आपका ये जो नया रिलेशनशिप है, आपका ये जो नई एनर्जी है, ये रिलेशनशिप को और अच्छे से आगे लेके जाएगा. इफ इट इज प्रमोशन, ये और अच्छे से ग्रो करेगा. इट इज जॉब, ये और अच्छे से ग्रो करेगा. आपको खुशी होगी उस जॉब में जाने के लिए. अगर ये यूनिवर्सिटी है, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो और आपको वो यूनिवर्सिटी मिला, तो होपफुली आप उस यूनिवर्सिटी में जिसके साथ भी मिलोगे, दैट कुड बी अ वेरी गुड पार्टनर फॉर यू. एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी वेरी वेल देयर. और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बी रेडी विथ इट. अगर आपको ये एनर्जी, ये रीडिंग बहुत अच्छा लगा, देन डू क्लेम इट बाय टाइपिंग 1111 एंड बी रेडी विद द नेक्स्ट रीडिंग. अगर आपको ये अच्छा लगा ये रीडिंग, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर आगे की रीडिंग के लिए भी आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो. मैं सेम कार्ड से आपकी रीडिंग आगे कर सकते हो. इफ इट इज योर रीडिंग बिलोंग्स टू you, then see through. Let me take some angels guidance. What are the beautiful angels guidance for my collective, and let me take that energy कि क्या है आपके लिए angel guidance का. I already have said it before also and it is said it again. Meditation brings answers. मैंने जब ये चीज़ देखा था तो मैंने आपको बोला था, तो जब 5 का मैंने कार्ड दिखाया था आपको, मैंने बोला था कि meditation always brings answers. So जब आप अपनी ऊर्जा पे जाओगे, जब आप meditation करोगे, this will create a very beautiful energy inside of you. You will understand that what kind of love that you deserve, what kind of people that you deserve, what kind of person that you needed. आपको हो सकता है कि अभी अच्छा लग रहा होगा कि मेरा specific person या मेरा स्पेशल पर्सन आ जाए, बट आर यू रियली रेडी फॉर दैट the toxic behavior of that person, या those red flags that person was showing? What exactly you need in that love? You need that acceptance, you need that respect, you need that unconditional acceptance. और अगर आपके प्रेजेंस से किसी की लाइफ चेंज हो रही है, आपके प्रेजेंस से अगर किसी को अच्छा लग रहा है, तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? अगर आपका एब्सेंस उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, then also it is not going anywhere, right? So आप अपनी ऊर्जा को जब ठीक करोगे, you will create a very beautiful journey all together. So अगर आप मेडिटेशन करना नहीं जानते, आपको अगर मेडिटेशन करना है,
और सीखना है कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्टेशंस होता है। यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली ऑल्सो, आई टेक सो मेनी मेडिटेशन सेशंस। तो बी रेडी विथ इट कि ये फरवरी मंथ में अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का कॉल नहीं आ रहा है या कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, कुछ भी चल रहा है, दीज मेडिटेशंस कुड हेल्प यू आउट विद दिस एनर्जी कि आप आगे चल के आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकोगे उस मेडिटेशंस के थ्रू जो मैं करवाती हूँ एवरी मंथ। एंड आई टेक दीज मेडिटेशन सेशंस एवरी सिंगल मंथ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आई लीव दोज लिंक्स हियर। तो आप उस हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो एंड बी रेडी विथ ऑल दीज ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू।